Hello everyone. Good morning. Again we are going to see chapter number 8, quadrilaterals of your textbook. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो हमारा चैप्टर है उसमें सबसे पहले आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. What do you mean by quadrilateral? What are the parts of quadrilateral? Then we will see different types of quadrilaterals. So, quadrilaterals. Any closed figure having 4 angles and 4 line segments. That closed figure is known as quadrilateral. ठीक है. Any closed figure having 4 sides and 4 angles, then it is known as what? A quadrilateral. The symbol of quadrilateral is this. This can be represented as A, B, C, D. This is known as quadrilateral. Quadrilateral A, B, C, D. Okay? Where you can see 4 sides are AB and BC and CD and last DA. Okay? These are the 4 sides. What are the 4 angles? Angle A, angle B, angle C and angle D. 4 angles. Then 2 more things are there in a quadrilateral. They are known as diagonals. Diagonals AC and diagonal BB. So sides, angles and diagonals. AC, B. Okay? Right? So, what is a quadrilateral? A closed figure having 4 sides and 4 angles is known as quadrilateral. Quadrilateral is further divided into 3 parts. ठीक है. कौन से 3 parts है? Angles, sides and diagonals. कितने angles हैं? 4 angles. Sides कितनी है? 4 sides. And diagonals कितने हैं? 2 diagonals. Okay? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्वाड्रिलेटरल का. क्वाड्रिलेटरल को फिर अगर डिवीजन करना हो तो क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिवाइडेड लाइक दिस. ये है क्वाड्रिलेटरल, ऐसा समझो. ठीक है. तो इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल जैसे हम लोगों ने ट्राइंगल्स में भी देखा था. ठीक है. इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल और तीसरा क्या होगा बताओ? Quadrilateral itself. Very good. So quadrilaterals can be divided into 3 parts. ठीक है. What are those? They are 3 divisions ऐसा बोल सकते हैं. Quadrilateral के 3 divisions है. Interior of quadrilateral, exterior of quadrilateral and quadrilateral itself. Okay? Parts of quadrilateral देखोगे तो 3 parts है. ठीक है. Sides, angles and diagonals. Sides कितनी है? 4. ठीक है. Then angles कितने हैं? 4. Diagonals कितने हैं? 2. ठीक है. समझ में आ गया. अब quadrilateral में हम लोग adjacent angles देखेंगे, adjacent sides देखेंगे, opposite angles देखेंगे and opposite sides देखेंगे. ठीक है. तो ये है basic structure of quadrilateral. ये है अपना ABCD. तो AB जो साइड है उसके अपोजिट जो साइड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड. अपोजिट मतलब सामने सामने. ठीक है. और एडजेसेंट मतलब क्या? बाजू बाजू. ठीक है. तो अगर मैं बात करता हूँ अपोजिट साइड की या अपोजिट पेयर ऑफ साइड की, ठीक है, तो वो मेरा क्या होगा? अगर AB है तो उसके सामने CD और अगर BC है तो उसके सामने AD. अब एडजेसेंट साइड बताएंगे. एडजेसेंट साइड्स अगर AB में बोल रहा हूं तो AB की एडजेसेंट साइड्स कौन सी होगी? तो एक होगा BC और दूसरा होगा AD. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ AB का BC भी है और AB का DA भी है. ठीक है, एडजेसेंट साइड.
अगर मैं BC लिख रहा हूं तो BC का AB है और BC का क्या होगा, CD भी होगा, बराबर। CD का क्या है, तो CD का एक BC है और दूसरा क्या है, AD। तो कितनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड होगी, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, AB BC ABD, BC CD CD AD। एंड अगर AD की बात करें तो AB एंड CD, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड मतलब जो बाजू बाजू में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड मतलब आमने सामने, ठीक है। सेम वे अब एंगल्स की बात करें तो अपोजिट एंगल्स पहले देखते हैं। तो एंगल A का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल C, और B का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल D। अगर A के एडजेसेंट एंगल की बात करें तो B एंड D, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू, ठीक है। B की बात करें तो A एंड C, C की बात करें तो D एंड B, और D की बात करें तो A एंड C। ओके, दे आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू, अपोजिट मतलब आमने सामने, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है सबको। सो अगेन, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? A quadrilateral is a closed figure having 4 sides and 4 angles. Basic parts अगर हम लोग बात करें तो 3 parts are there of quadrilateral: sides, angles and diagonals. How many sides? 4 sides. How many angles? 4 angles. How many diagonals? 2 diagonals. ठीक है? Then division of quadrilateral, again 3 division: one interior of a quadrilateral, one exterior of a quadrilateral, and third quadrilateral itself. Okay, 3 प्रकार के quadrilaterals हो गए, done and dusted, ठीक है। अब sorry, the 3 division of quadrilateral हो गए। Then we have seen what, adjacent angles and adjacent sides, opposite angles and opposite sides। एडजेसेंट साइड्स का पैर अगर देखने जाए तो कितनी है, 4, ठीक है। अपोजिट्स कितनी है, 2। AB का अपोजिट क्या होगा, CD। BC का अपोजिट क्या होगा, DA, ठीक है। एंगल्स की बात करें तो एंगल A के सामने आपको कौन सा एंगल देखने को मिलेगा, एंगल C। एंगल B के सामने आपको कौन सा एंगल देखने को मिलेगा, एंगल B, ठीक है। ये हुआ आपका क्वाड्रिलेटरल का बेसिक फीचर, ठीक है। ये क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल का बेसिक फीचर, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ये पूरे चैप्टर में काम आएगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। First is your parallelogram, second is rectangle, third is your square, fourth rhombus, fifth kite, and last but not the least trapezium, ठीक है, trapezium, ठीक है। अब parallelogram will look like this. This is a parallelogram. ठीक है? This is a parallelogram. Then rectangle, square, rhombus, kite, and okay, ये सारे के सारे शेप्स अवेलेबल है। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट। सर रोम्बस और काइट में डिफरेंस क्या है? दोनों तो सेम काजू कतली जैसे ही तो दिखते हैं, डिफरेंस है।
ठीक है, we will see. And trapezium. One by one, I will make you write the definitions of every quadrilateral. So quadrilateral की definition क्या है? कि a closed figure having 4 sides and 4 angles is known as quadrilateral. तो parallelogram की definition क्या है? Parallelogram is nothing but a quadrilateral having opposite pair of sides equal and parallel. ध्यान से सुनना, ठीक है? Equal and parallel. Suppose A B C D अगर मुझे parallelogram प्रूव करना है तो क्या होगा? AB must be parallel to CD and BC must be parallel to A. Parallel मतलब ये आपस में कभी भी intersect होंगे नहीं. So what is the definition of parallelogram? The parallelogram की definition क्या होगी? The quadrilateral. ये याद रखना. The quadrilateral in which opposite pair of sides are parallel, and it is known as what? And it is known as a parallelogram. Okay, this is the definition of parallelogram. Or quadrilateral whose opposite pair of sides are equal as well as parallel. आपका parallel होगा ना तो भी वो parallelogram हो जाएगा. Equal तो बाद में आएगा, ठीक है? Then what is a rectangle? अब rectangle की definition ध्यान से सुनना. Quadrilateral की definition सुना ना? A closed figure having 4 sides and 4 angles. फिर मैंने parallelogram के लिए क्या बोला? A quadrilateral having both the opposite pair of sides parallel. अब rectangle की definition सुनना. A parallelogram having all 4 angles 90 degree. A parallelogram having all 4 angles 90 degree, then it is known as rectangle. बराबर? कहाँ से स्टार्ट किया? क्वाड्रिलेटरल से. क्लोज्ड फिगर से क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यूज करके रेक्टेंगल. अब ध्यान से सुनना स्क्वायर के डेफिनेशन. अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल. A rectangle having all sides equal is known as square. तो 1 2 3 ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है? कहाँ से कनेक्टेड हो रहा है? क्वाड्रिलेटरल से. पहला क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक क्लोज फिगर है जिसकी 4 साइड और 4 एंगल है. उसके बाद ठीक है क्या देखा हम लोगों ने? पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या है? क्वाड्रिलेटरल है. पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या है? पैरेलल है. पैरेलल मतलब क्या? आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगी कभी भी. देन रेक्टेंगल क्या है? एक पैरेललोग्राम है जिसके चारों 4 एंगल क्या है? 90 डिग्री. रेक्टेंगल क्या है? सॉरी स्क्वायर क्या है? एक रेक्टेंगल है जिसमें चारों 4 साइड्स इक्वल है इन टर्म्स ऑफ लेंथ. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ. देन कम्स योर रोम्बस. ठीक है, देन कम्स योर रोम्बस. रोम्बस क्या है? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम whose all 4 sides are equal. There is a difference. स्क्वायर में मैंने ऐसा बोला a rectangle having all 4 sides equal. और रोम्बस में मैं क्या बोल रहा हूं? A parallelogram whose all 4 sides are equal. ठीक है, there is a difference. क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में चारों 4 एंगल 90 है, तो स्क्वायर में भी चारों 4 एंगल क्या होंगे? 90. बट मैंने रोम्बस में ऐसा नहीं बोला कि रोम्बस के चारों 4 एंगल 90 है. रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम है जिसकी हर एक साइड इक्वल. रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal. बराबर है? समझ में आया? अब
आया काइट। अब ध्यान से देखना सर, दोनों का डायग्राम सेम है तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ quadrilateral definition, a quadrilateral whose adjacent pairs are equal, adjacent pairs। सपोज इसको हम लोग अभी काइट अज्यूम करते हैं, ठीक है, अभी के लिए ए बी सी डी। तो और अगर रोम्बस है तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, चारों चार इक्वल है अगर रोम्बस है तो। लेकिन अगर ये काइट है तो क्या होगा पता है? ए बी और ए सी इक्वल, एडजेसेंट इक्वल, बराबर। और बीडी के साथ क्या इक्वल होगा? सी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? काइट। तो काइट की डेफिनेशन में मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? अ क्वाड्रिलेटरल, बराबर है। अ क्वाड्रिलेटरल whose adjacent pair of sides are equal। वापस, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बहुत सिंपल है। अगेन अ क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite sides are parallel, बराबर है। ये दो कहीं ना कहीं पे जाके इंटरसेक्ट होगी, लेकिन ये और ये ऐसी है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगी। वापस, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल? अ क्लोज्ड फिगर, a closed figure having all four angles and four sides, बराबर है। What is a parallelogram? A quadrilateral having both opposite pair of sides are parallel. What is a rectangle? A parallelogram. A parallelogram having all four angles 90 degrees. What is a square? A rectangle having all sides equal. What is a rhombus? A parallelogram having all sides equal. What is a kite? A quadrilateral having adjacent pair of sides equal. And last, trapezium, a quadrilateral having one pair of sides, having one pair of opposite side equal, parallel. Then it is known as your ट्रेपेजियम। ठीक है, समझ में आया?